آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی۔ جنوبی پنجاب میں ادرک سونے کے بھاؤ بکنے لگا۔ جنوبی پنجاب میں ذخیرہ اندوز مافیا بے لگام، 1200 روپے فی کلو میں فروخت۔ ایک ہی دن میں 200 روپے فی کلو ادرک مہنگا ہو گیا۔ سبزیاں عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں۔ انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ ادرک ہر ہانڈی میں استعمال ہونے والی ایک اہم سبزی ہے اور اگر یہ استعمال نہ کی جائے تو کھانے میں لذت نہیں آتی۔ ادرک کی قیمت ملتان میں 1000 روپے فی کلو پر پہنچ گئی۔ ایک دن میں 200 روپے فی کلو کے اضافے نے شہریوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اتنی مہنگی ادرک ہوئی ہے، منڈی میں 800 روپے کلو ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ مارکیٹ میں بازار میں 1000 روپے کلو ہے۔ ادرک چائنا میں بھی مہنگی ہے اور ادھر پاکستان میں بھی مہنگی ہے۔ یہ دبئی سے ادھر آ رہی ہے، چائنا سے دبئی، دبئی سے پھر پاکستان، کراچی سے ملتان آ رہی ہے۔ دیکھو لوڈنگ اور اس کا کتنا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگی ادرک بیچنے پر مجبور ہیں، ابھی تک قیمت کم ہونے کے امکان نہیں ہے۔ ہانڈی کا اہم جز ادرک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب مارکیٹ کے اندر اتنی سی ادرک 50 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ ادرک کی قیمت میں کمی لائی جائے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم، ملتان۔ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ مہنگائی میں پسے عوام کو سرد موسم میں بجلی کا بڑا جھٹکا لگا دیا گیا۔ نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ قیمت میں اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ عوام کو پھر بجلی کا جھٹکا۔ نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی 1 روپیہ 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ قیمت میں اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا ہے۔ ستمبر میں بجلی کی پیداوار لاگت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ تھی۔ پہلے ہی جو ہے کورونا کی وجہ سے بہت مہنگائی ہو رہی ہے، ہمیں تو فیول ایڈجسٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو مہنگائی سے ہے۔ پہلے ہی جو ہے نا بزنس تباہ ہو گئے ہیں، کاروبار برباد ہو گئے ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ جو ہے کسی طریقے سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے پر شہری خاصے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں آئے دن بلا وجہ کسی نہ کسی چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ بعد بھی مہینے کے کہنے چاہیے کہ کاروبار ہے نہیں، روزی روزگار ہے نہیں، اب غریب بندہ بہت پریشان ہے کہ لہٰذا مہربانی کیا جائے، ہمارے بعد سہولت دی جائے ہمیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو عوام دوست پالیسیاں بنانی چاہیے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ادرک مہنگا ہو گیا، پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہو گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ 16 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات 7 روپے فی لیٹر تک مہنگی کرنے کی تیاری۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا دی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے۔ ادرک بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی تجویز زیر غور ہے۔ بیٹیوں کا جہیز بنانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران سونا 1500 روپے فی تولہ سستا ہو گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں 160.50 روپے تک پہنچ گئے۔ ملک بھر میں سونے کی قدر میں کمی جبکہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی منڈی میں سونا $16 فی تولہ سستا ہو گیا۔ سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمت $1824 ہو گئی ہے۔ مقامی طور پر سونے کی فی تولہ قیمت میں 1500 روپے کمی ہوئی ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,09,000 روپے ہو گئی۔ گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت $1838 تک رہی۔ سوموار کو مارکیٹ کھلتے ہی سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان رہا جو کم ہو کر $1823 تک گر گیا۔ سوموار کو ڈالر 35 پیسے اضافے کے بعد 160.50 روپے تک پہنچ گیا۔ گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت $1838 تک رہی۔ سوموار کو مارکیٹ کھلتے ہی سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان رہا جو کم ہو کر $1823 تک پہنچ گیا ہے۔ بات کریں گے ترقیاتی منصوبوں کی۔ ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ نئے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور پارلیمنٹیرین کے مشترکہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ممبران اسمبلی کی نشاندہی پر منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔
नए तरक्याती मंसूबों के हवाले से जिले इंतजामिया और पार्लियामेंटेरियन का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में तरक्याती मंसूबों बारे तरजीहात और मैकेनिज्म तय कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मलिक आमिर डोगर, वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, MNA मलिक अहमद हुसैन डेहर, मेंबरान सूबाई असम्बली वसीम खान बादोजई, कासिम खान गंगा, मलिक वासिफ रा, सलीम अख्तर लाबर, तारिक अब्दुल्ला, सबीन गुल, खालिद जावेद फड़ाइश, मोहम्मद अकरम, अजीज रसूल संदेला, शाहिद मुजफ्फर, इरफान अंजुम ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मलिक आमिर डोगर ने कहा कि मुल्तान मुस्तकबिल का सूबाई दारुल हुकूमत है। अब जनूबी पंजाब का मरकज मुल्तान तामीर और तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। जिले को मिलने वाले फंड अवामी अहमियत की हामिल मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान पैकेज के लिए खुसूसी फंड हासिल किए जाएंगे। मुल्तान पैकेज में सीवरेज, सड़कों की कुशादगी, अस्पतालों और तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन शामिल है। फंड से मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों को कुशादा किया जाएगा। नई स्कीम को भी 1 साल गुजरने के बावजूद चोलिस्तानियों को ताहाल उनका हक न मिल सका। चोलिस्तानियों को जमीनों की अलॉटमेंट अफसरान के अदम दस्तयाबी के बायस ताखीर का शिकार हो गई। चोलिस्तानियों को दूसरी अलॉटमेंट स्कीम आने के बावजूद काश्तकारी के लिए जमीन नहीं दी जा सकी। किसानियों को दूसरी अलॉटमेंट स्कीम आने के बावजूद काश्तकारी के लिए जमीन न दी जा सकी। स्कीम के तहत तमाम चोलिस्तानियों को 12.5 एकड़ रकबा काश्तकारी के लिए दिया जाना था। दरखास्त गुजार में 60,000 से ज्यादा चोलिस्तानी शामिल हैं। मामला 1 साल से ताखीर का शिकार है। MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना था कि कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दी थी कि तमाम चोलिस्तानी दोबारा अपनी दरखास्तें जमा करवाएं। खसूसी काउंटर बनाकर 3 माह तक तमाम दरखास्तें वसूल की गयी। चोलिस्तानियों की जानिब से 64,255 दरखास्तें वसूल की गयी। कमेटी में तमाम मुतालिका महकमों के आला अफसरान को रखा गया। इरिगेशन, नादरा और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे शामिल हैं। अलॉटमेंट में ताखीर की वजह कोरोना और अफसरान की अदम दस्तयाबी है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम अफसरान को सख्ती से मामला जल्द हल करने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता स्कीम में मेरिट पर आने वाले अलॉटियों की तादाद 15,000 थी। 2 से 3 माह में इन तमाम दरखास्त गुजारों को अलॉटमेंट कर दी जाएगी। कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दी थी कि इन तमाम चोलिस्तानी भाइयों से दरखास्तें दोबारा से वसूल की जाएं। हमने यहाँ पे बाकायदा काउंटर बना के 3 माह तक दरखास्तें वसूल की और उन दरखास्तों की तादाद 64,255 है। ऑफिसर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से और मेजर वजह बनी है कोविड-19 की वजह से कि ये जो जलसा आम करना है उसमें थोड़ी सी इन्हें प्रॉब्लम पेश आ रही थी। कि साहिबान को सख्ती से हिदायत की गई है SMBR साहब की तरफ से भी और हाई अप्स की तरफ से भी कि इस प्रोसेस को सीरियसली लेंगे और इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान और एहलकारों के लिए रिटायरमेंट लेना अब इतना आसान नहीं होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिटायरमेंट के लिए नया कानून लागू कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन ने कहा कि रिटायरमेंट से कबल किसी भी एहलकार या ऑफिसर को मुख्तलिफ एजेंसी से क्लैरिफिकेशन कराना लाजमी होगा। NAB, एंटी करप्शन, FIA समेत दीगर इदारों से क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इकदाम इसलिए उठाया गया है ताकि यहां से रिटायर्ड होने वाले लोग किसी भी गैर कानूनी काम में मुलव्विस न हो और अगर ऐसा हुआ तो एक्शन लिया जाएगा। कोरोना की बात करेंगे। जनूबी पंजाब भर में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मरीज जान बहक हो गए। सरगोदा डिवीजन में कोरोना मजीद 7 अफराद की जानें निकल गया। DG खान डिवीजन में कोरोना के नए 270 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना वायरस के हमलों में शिद्दत आ गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 4 मरीज जाँ बाक हो गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 322 हो गई। सरगोदा में कोरोना वायरस के कातिल वार तेज। डिवीजन में कोरोना मजीद 7 अफराद की जानें निकल गया। सरगोदा डिवीजन में लाखों की मजमूई तादाद 164 हो गई। मुजफ्फरगढ़ शहर में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के 13 डॉक्टर्स, 5 नर्सिस और 2 पैरामेडिकल स्टाफ में वायरस की तस्दीक। 2 डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गए। रहीमियार खान में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा। 22 मरीजों में मजीद तस्दीक। 2 मरीज कोरोना वायरस की वजह से जहां बाक हो गए। दूसरे फेज में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 381 हो गई। बहावलपुर में कोरोना केसेज में इजाफे का सिलसिला जारी। सिविल अस्पताल में 32 मरीज जेर इलाज है जबकि 8 की हालत तशवीशनाक है। बहावलपुर में जान की बाजी हारने वाले मरीजों की तादाद 94 और कुल एक्टिव केसेज की तादाद 676 है। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस के वार जारी। DG खान डिवीजन में
कोरोना के नए 270 केसेस रिपोर्ट हुए। डीजी खंड डिवीजन में माह दिसंबर में कोरोना से 3 अमवात हुई। अस्पताल पहुंचने से कबल ही अगर एम्बुलेंस में मरीजों को वेंटिलेटर की सहूलत फ्राहम कर दी जाए तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 ने मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया है। की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर को बुनियादी जुज़ शुमार किया जाता है। ये सहूलत पहले अस्पतालों में फराहम की जाती थी, लेकिन अब मुल्तान के शहरियों को ये सहूलत एम्बुलेंस में भी फराहम की जा सकेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। एम्बुलेंस नहीं, मिनी अस्पताल। रेस्क्यू 1122 ने मुनफरिद मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। अब मरीजों को एम्बुलेंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के साथ वेंटिलेटर की सहूलत भी मैसर आएगी। जदीद वेंटिलेटर के जरिए मरीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन को जरूरत के मुताबिक मेंटेन किया जा सकेगा। ये एम्बुलेंस एक मिनी हॉस्पिटल का रोल अदा करेगी। कोरोना की इस वबा में खास तौर पे जब हमारे पास आईसीयू में बेड्स खत्म हो जाते हैं, वेंटिलेटर के बेड्स नहीं होते, तो ये ट्रांसपोर्टेबल डिजिटल वेंटिलेटर्स हैं। 6 घंटे इनकी बैटरी टाइमिंग है विदाउट एनी सोर्स। मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस में मरीज को 6 घंटे तक वेंटिलेटर की सहूलत फराहम की जा सकती है। मरीज को तिब्बी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू स्टाफ के साथ डॉक्टर भी एम्बुलेंस में मौजूद होगा। रेस्क्यू स्टाफ 3 शिफ्टों में मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस में ड्यूटी करेगा। हमारी इन एम्बुलेंसेज के ऊपर भी तो आप ये देख लें कि एक एम्बुलेंस के ऊपर 6 EMT जैसे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस या पैरामेडिक्स जो हमारा ट्रेंड स्टाफ होता है वो होंगे, और 3 ड्राइवर एक एम्बुलेंस के ऊपर। उस हिसाब से आप देख लें कि चारों के चारों हमने ऑपरेशनल की हुई हैं। इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जिला मुल्तान को 4 एम्बुलेंसेज फराहम की गई हैं। एक एम्बुलेंस की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कोरोना की इस वबा के दौरान मुल्तान में रेस्क्यू 1122 की जानिब से मूवेबल वेंटिलेटर सर्विस के आगाज किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे। शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले तारिक रोड पर बोसीदा सीवरेज निजाम शहरियों के लिए वबाली जान बन गया। शाहराहों पर जमा गंदे पानी से दुकानदार परेशान है। हमें रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर है शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले तारिक रोड के, जहां सीवरेज के बोसीदा निजाम के बाइस गलियों और शाहराहों पर जमा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। दुकानदारों का कहना है कि वो इंतजामिया को कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ये आज 15 दिन हो गए इसको जो है ना ये पानी आ रहा है, हालांकि कई दफा दरख्वास्त भी दी है मगर कोई भी इसका जो है ना एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरियों का कहना है कि एक हफ्ते से रोड पर खड़े गंदे पानी के बाइस कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जिससे नमाजी हजरात को भी मुश्किलात का सामना है। नमाजी प्रेजी आते हैं, गाड़ी आती है, छींटे हमारे पे पड़ती हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं। 15 दिन हो गए हमारे को ये दरख्वास्त भी दी हुई है, कोई इधर मौके पे आता ही नहीं है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सीवरेज के बोसीदा निजाम के मसले को फिलफौर हल करे ताकि शहरियों की मुश्किलात का अजाला हो सके। शहर औलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले तारिक रोड पर खड़ा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। बोसीदा सीवरेज निजाम के बाइस शहरी अपनी मदद के तहत ही पानी निकालने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। उधर सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर राजा इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ डीजी खान के सरकारी दफातर में क्लर्क्स ने काम छोड़ दिया। मुलाजमीन ने कहा कि इंसाफ मिलने तक हड़ताल जारी रखेंगे। सरगोदा की तहसील साहिवाल में होने वाले वाक़े पर डीजी खान में सरकारी दफातर में कलम छोड़ हड़ताल दिन भर जारी रही, जिसकी वजह से आने वाले साइलिन मुश्किलात से दो चार नजर आए। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल को गिरफ्तार करने के मामले पर सरकारी मुलाजमीन का पारा हाई दिखाई दिया। कहते हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हड़ताल जारी रहेगी। पूरा पंजाब, तमाम जिले 36 जिला बंद होंगे और हम इस रवैये की मजम्मत करते रहेंगे जब तक वो सिविल जज जो है हमारे उन अफसरान से माफी नहीं मांगे। डीजी खान में एपका की जानिब से सरकारी दफातर में तमाम मुलाजमीन आए लेकिन काम नहीं किया। असिस्टेंट कमिश्नर राजा इमरान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुलाजमीन ने दिन भर आइंदा लाहे अमल पर गौर किया और तहरीक में मजीद तेजी लाने का अंदिया भी दे डाला। ये तो कोई तरीका नहीं है, इसको एक सीनियर ऑफिसर को जो है ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट होकर आए हैं, उनको जो है कहें जी गिरफ्तार कर लें और इस किस्म का हम उसकी मजम्मत करते हैं भरपूर। सरकारी दफातर में कलम छोड़ हड़ताल डीसी, एसी, पीए, कमिश्नर और तहसील दफातर में मुकम्मल दिखाई दी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में होने वाले वाक़े पर डीजी खान समेत पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी जा रही है। आइंदा कुछ दिनों में अगर दफातर मजीद बंद रहे तो साइलिन को मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क,
डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राजा इमरान की गिरफ्तारी का मामला मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर और अमले ने कलम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं गौहर रहमान। साहिवाल में तजावुजात ऑपरेशन का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सिविल जज मोहम्मद नईम के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर राजा इमरान की गिरफ्तारी के मामले पर ब्यूरोक्रेसी इंस्टॉल में आ गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर समेत इंतजामी अफसरान ने कलम छोड़ हड़ताल की। तमाम का तमाम वाकया, साथ में सिर्फ बाकी उनका जो स्टाफ था, तहसीलदार थे, पटवारी थे और जो क्लर्क, उनके हेड क्लर्क थे, उनके साथ भी, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मतलब एक किस्म का एक गैर मुनासिब सा वाकया था, जिस पे पूरे पंजाब में हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं और हमारे जो कमिश्नर साहिबान हैं, तमाम इंतजामिया जो है इस वाकये की शदीद मजम्मत करती है। हड़ताल के बाइस मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स दफातर, कमिश्नर दफातर, जिलाई कौंसल्स, तहसील कौंसल्स, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, रजिस्ट्री ब्रांच और अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में काम बंद रहा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमान कैसरानी का कहना था कि अफसोसनाक वाकये का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। कानून से मावरा होने वाला ये इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है और मैं बतौर एक इंतजामी अफसर मैं मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो ऐसे इस वाक़े के खिलाफ एक्शन लें। हड़ताल जारी रहेगी या फिर खत्म की जाएगी, ये फैसला इजलास में होगा, जहां आइंदा का लाया अमल भी तय किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। कस्टम्स और कस्टम्स इंटेलिजेंस में मुतादिद तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सुपरिटेंडेंट कस्टम्स मसूद सादिक तारड़ का मुल्तान से, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर और इंस्पेक्टर मुरातिब मुश्ताक का लाहौर से कस्टम्स इंटेलिजेंस मुल्तान तबादला कर दिया गया। कस्टम और कस्टम इंटेलिजेंस में तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सुपरिटेंडेंट कस्टम मसूद सादिक तारड़ का मुल्तान कलेक्टोरेट से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तबादला कर दिया गया। इंस्पेक्टर कस्टम नासिर सईद का एंटी स्मगलिंग से तबादला करके डीसी हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म। इंस्पेक्टर कस्टम मुरातिब मुश्ताक का लाहौर से कस्टम इंटेलिजेंस मुल्तान और प्रिंसिपल अपेयर जावेद मसूद का फैसलाबाद से पीएसए लाहौर में तबादला कर दिया गया। इंस्पेक्टर कस्टम मोहसिन अली ताहिर का पेशावर तबादला कर दिया गया। सरगोदा में महकमा सेहत के मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने डीएचक्यू अस्पताल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली निकाली। फसीउल्लाह की रिपोर्ट। सरगोदा में महकमा सेहत के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रैली डीएचक्यू अस्पताल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंची तो मुलाजमीन ने धरना दे दिया। मुलाजमीन का कहना था कि वो 6 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। 200 से ज्यादा मुलाजमीन 6 माह से काम कर रहे हैं और तनख्वाह मांगने पर सीओ हेल्थ मुलाजमीन को नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। हम डेंगू मुलाजमीन गुज़श्ता 6 माह से काम कर रहे हैं जी, और हमें अभी तक कोई तनख्वाहें नहीं मिली, ना ही हमारे आर्डर टाइप हुए हैं। जब भी हम सीओ के पास जाते हैं वो आगे से लारा लगा देते हैं। 3 माह की कॉन्ट्रैक्ट बेस की हमें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि हमारी पे हमें प्रोवाइड की जाए और हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए जाए। मुलाजमीन का कहना था कि डेंगी के साथ साथ उनसे कोरोना का भी काम लिया जाता रहा, ना हिफाजती सामान दिया जाता है और ना तनख्वाह दी जाती है। हम 6 माह से काम कर रहे हैं, संडे को भी बुलाया जा रहा है, डेंगी कर रहे हैं, पोलियो कर रहे हैं, कोरोना कर रहे हैं, फील्ड वर्क हो रहा है, फील्ड वर्क पे अखराजात ज्यादा हैं। 6 माह से गरीब बंदे हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, कैसे चलेगा? घर में हाके पड़े हुए हैं सर। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि फंड्स की कमी का सामना है, फंड्स दस्तयाब हों तो मुलाजमीन को बर वक्त अदायगी होगी। 6 माह की तनख्वाहों से महरूम महकमा सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। ताहम महकमा सेहत की इंतजामिया ने फंड्स की कमी को ढाल बना रखा है। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद से मखदूम हाउस लाहौर में जनूबी पंजाब के अहदेदारान की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, मेंबर कौमी असम्बली नवीद आमिर जीवा, पीपल्स पार्टी डीजे खान वीएन के जनरल सेक्रेटरी आसिफ खान सिद्दीकी, सिटी सदर मुल्तान मलिक नसीम लाबर, जिलाई जनरल सेक्रेटरी मुल्तान राव साजिद अली, जिलाई सदर बहावलपुर मलिक शाहरुख, ख्वाजा इमरान, मलिक नदीम अख्तर, जिलाई जनरल सेक्रेटरी बहावलनगर मलिक सलीम, खवातीन विंग जनूबी पंजाब की नायब सदर कमल मलिक समेत दीगर शामिल थे।
मुल्तान के 14 साल होनहार तालिब इल्म मोहम्मद बिन निसार ने पाकिस्तान के कम उम्र तरीन बैनुल-अक़वामी रिसर्चर का एजाज अपने नाम कर लिया। मोहम्मद बिन निसार ने जदीद तरीकों से आलूदा पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मौजू पर रिसर्च की। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। मेहनत और जहानत से रिसर्च के शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला ये है मोहम्मद बिन निसार, जो बीकन हाउस स्कूल में मैट्रिक का तालिबे इल्म है। आलूदा पानी को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जदीद तरीके पर की गई नौजवान की रिसर्च को बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता स्विट्जरलैंड के रिसर्च जनरल ने 7 दिसंबर को बतौर रिसर्च पेपर शाया किया, जिसके बाद मोहम्मद बिन निसार का नाम पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन बैनुल अक़वामी रिसर्चर के तौर पर सामने आ गया। हमने एक 2 फेज मेथोडोलॉजी प्रपोज की है। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है कि अगर हम बेल्जियन वोर्टेक्स टरबाइन इंस्टॉल करें तो वो इको फ्रेंडली है और वो वाटरवेज को डिस्टर्ब नहीं करती, तो वो हम उसी वाटर चैनल से हम पावर प्रोड्यूस करके उसके आगे हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें ताकि वो उसी चैनल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी एनर्जी से चले और वो उस चैनल के पानी को क्लीन कर दे। मोहम्मद बिन निसार की कामयाबी पर न सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद हुआ है। नौजवान रिसर्चर ने बताया कि पाकिस्तान में तेजी से कम होते ज़ेरे जमीन पानी के ज़खायर और नहरी पानी आलूदा होने के सबब आबादी का एक बड़ा हिस्सा साफ पानी से महरूम हो चुका है। आलूदा पानी को बेल्जियन वर्टेक्स टरबाइन के जरिए से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असूलों के मुताबिक ज़राअत और आम इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए 6 माह तहकीक की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन दिखाया है कि इसने इतनी कम उम्री में ये एक लेवल अचीव किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे भी इसको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करे और ये कोई ऐसा काम करे जिससे हमारी मुल्क और कौम का भी फ़ायदा हो। हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटे ने मतलब पोते मेरे ने ये कारनामा किया है और इंशाअल्लाह ही विल कंटिन्यू दैट। मोहम्मद बिन निसार की वालिदा का कहना है कि तालीमी निज़ाम में बच्चों को किताबों के साथ अमली काम और तहकीक भी करवाई जाए। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। मुल्तान जैसे शहर में रिसर्च वर्क के लिए सहूलियात ना होने के बावजूद इस होनहार तालिबे इल्म ने ये साबित कर दिखाया है कि इंसान अपनी मेहनत से दुनिया के किसी भी मैदान को फतह कर सकता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। देजे खान में लड़कियों की बैडमिंटन चैंपियनशिप कोरोना एसओपीज के तहत दोस्ताना मुकाबले कराए गए। रिपोर्ट करेंगे मोहसिनुल मुल्क। डेरा गाजी खान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस के एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए खवातीन की बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले कराए गए। चैंपियनशिप में पूरे डीजी खान डिवीजन से खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपने फन के जौहर दिखाए। खवातीन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शायकीन और बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद समाजी फासले के तहत इंडोर मैदान में नजर आए, जबकि रुकने सूबाई असम्बली डॉक्टर शाहीना खोसा भी खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुकाबलों को देखने कोर्ट में पहुंच गईं। डॉक्टर शाहीना खोसा का कहना था कि तहरीक इंसाफ की खवातीन भी जल्द बैडमिंटन की टीम बनाएंगी, खुद भी इस खेल को खेलना शुरू कर रही हैं। एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं खवातीन यहाँ पे, और जो हम चाहते हैं कि खवातीन में भी स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। आगे हमारा इरादा है, मेरी पीटीआई की खवातीन को भी मैंने साथ लेकर आई हूँ ताकि हम खवातीन के अंदर इसको और उजागर करें स्पोर्ट्स को। डीजी खान एक रोजा खवातीन बैडमिंटन चैंपियनशिप मुकाबलों में डीजी खान ने पहली, राजनपुर ने दूसरी, जबकि तीसरी पोजीशन लिया के नाम रही। डेरा गाजी खान में बैडमिंटन चैंपियनशिप में न सिर्फ ग्राउंड आबाद हो गए हैं बल्कि बच्चों के भी कॉन्फिडेंस बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। उधर रहीमिया खान में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा कदम, शेख ज़ैद अस्पताल में नया मेडिकल यूनिट बना दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। शेख ज़ैद अस्पताल में बढ़ती हुई मरीजों की तादाद पर मेडिकल यूनिट में एक ही बेड पर 2-2 मरीज जेरे इलाज रहते थे। शेख ज़ैद अस्पताल में मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए नया मेडिकल यूनिट बना दिया गया। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि अस्पताल में मरीजों की बेहतरी के साथ साथ मेडिकल तलबा को भी सीखने के बेहतरीन मौके मिलेंगे। पहले हमारे पास मैन पावर मौजूद थी लेकिन जगह नहीं थी और बेड्स अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से बहुत ओवर क्राउडिंग थी। 2-2 मरीज शेयर करते थे एक बेड को,
اور اس سے کراس انفیکشن اور جو طبی سہولت مہیا کرنے میں کافی دقت ہوتی تھی. 50 بیڈ کا ایک مزید وارڈ کا اضافہ کر دیا ہے جو کہ نہ صرف ضلع رحیم یار خان بلکہ اس کے مضافات کے صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ کے علاقے اور پھر کراس ریور سندھ کے علاقے ان کے مریضوں کے لیے یہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں. نئے میڈیکل یونٹ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اکمل حسین، ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر معین اختر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان اور سینئر رجسٹرار ڈاکٹر فیروز علی مہر ہیں. نئے میڈیکل یونٹ میں 50 بیڈز کا اضافہ ہوا ہے. یہ جو ہے علاقے کے مریضوں کے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا، اور جو ہمیں پرابلمز فیس کرنے پڑتے تھے بیڈز کے حوالے سے، بعض دفعہ جو ہے ایک بیڈز پہ ہمیں 2 مریض ڈالنے پڑتے تھے، بہت زیادہ کنجیشن ہوتی تھی، اس سے ہمیں جو ہے ہوگا پیشنٹ کی کیئر بہتر ہوگی. نئے میڈیکل یونٹ میں 50 ایموز اور WMOز طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ذمہ داری ادا کریں گے. شیخ زاد ہسپتال کے مریضوں کی بہتری کے لیے تیسرا میڈیکل یونٹ بنا دیا گیا ہے. مخیّر حضرات کے 40 لاکھ کی ڈونیشن سے نیا سامان خریدا گیا جس سے مریض تو استفادہ ہوں گے بلکہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ملے گا. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. بہاولپور کے جوان محمد سلیم نے صوبہ سندھ میں تھرپارکر کے مقام پر 1985 میں شہادت حاصل کی. شہید محمد سلیم کی برسی کے موقع پر ان کی والدہ نے کہا کہ ان کو شہید کی ماں ہونے پر فخر ہے. محمود ظہیر کی رپورٹ. شہادت ایک عظیم نعمت ہے جو ان کے حصے میں آتی ہے جو ملک و قوم کے لیے کچھ کر گزریں. ایسے لوگ امر ہو جاتے ہیں. بہاولپور سے تعلق رکھنے والے محمد سلیم نے تھرپارکر کے مقام پر 1985 میں دہشت گردوں کے حملے میں شہادت پائی. شہید کی والدہ کو بیٹے کی شہادت پر آج بھی فخر ہے. 14 دسمبر کو شہید ہوئے تھے میرے بیٹے ہیں نا، اور میں نے بڑا فخر ہے میں شہید کی ماں ہوں. میں اور بھی بچے بھیجنا چاہ رہے تھے، ان کا ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وجہ سے بچے نہیں گئے. 14 دسمبر کو محمد سلیم کی برسی